Unacademy. Let's crack it. दिस इज मुकेश फ्रॉम अनअकैडमी। आज एक बहुत प्यारी हम सीरीज लेके आए हैं। हमारे सामने जो है चैतन्या है, ठीक है, जो बीए फर्स्ट ईयर में है। कामनी वो भी बीए फर्स्ट ईयर में, और इरम बीए फर्स्ट ईयर में। और ये बच्चे रिसेंटली जो है आपके 12th पास हुए हैं और सिविल सर्विस की क्या है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आज हम एक ऐसा एपिसोड आपके सामने लेके आए हैं जिनमें हम इन बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे और इन बच्चों की भी आपस में क्या होगी, कुछ नॉलेज फाइट होगी। साथ ही हमारे संग जो है जितेंद्र सर भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड को। सबसे पहले एक एक करके जो है हम कुछ बच्चों से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। 4 के आसपास आपके पास क्वेश्चन होंगे और आपको उनके क्या करने पड़ेंगे, जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। तो चैतन्या से स्टार्ट करते हैं। चैतन्या कैसे हो? अनम्यूट कर लो अपने आप को। I'm fine, sir. How are you? हाँ, थोड़ा अपने बारे में बताओ। आपने जो है 12th कहाँ से किया और अभी आप ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से कर रहे हैं और किस वर्ष के आप जो है छात्र हैं? Okay. So my name is Chaitanya Garg. Currently my age is 19 years old. I have done my schooling from Hillwoods Academy in Preethgarh, Delhi, and currently I am pursuing BBA from Maharaja Agrawal Institute of Management Studies, Delhi. आपका विषय क्या है, एक बार दोबारा बता दीजिए ग्रेजुएशन का। Sir, BBA, Bachelor of Business Administration. अच्छा, बीबीए कर रहे हो आप। चलिए, Yes, sir. आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। मुझे ये बताओ कि एपीएमसी ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है? Sir, APMC is Agriculture Producing Marketing Committee. And sir, earlier the system was that when a farmer has done any produce, he has to take his produce to the mandi, and their commission agent will be a settling man who will take his produce and then sell to the trader. There was a system that without commission agent, farmer will not be able to sell directly to the trader. So here the main role was of commission agent, as he was earning while purchasing also, and while selling also he was taking commission. But now in 2017 there was APMC Model Act introduced by Prime Minister Narendra Modi, as he has aimed to double the farmers' income by 2024. Now in this APMC Act, our Prime Minister has said that farmer can establish direct contact with the trader, and no middleman can insist him that if he will not sell to the middleman, then he cannot do anything with him. What a nice explanation given by Chaitanya. You can see that how much confident he is in giving the answer of my question, and he is just in BBA first year. You can see that we are producing future, ठीक है। हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि चैतन्य के दिमाग में देखो आपको एपीएमसी एक्ट फिट हो गया, जबकि बहुत सारे जो ग्रेजुएशन के बाद भी होते हैं ना, तो कंफ्यूज होते हैं इसमें एपीएमसी में, ठीक है। अब परमानंद सर से सोचूंगा कि एक क्वेश्चन आप भी जो है चैतन्य से करें, ठीक है। सर आपकी बारी। लगता है कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम है। चलो मैं ही दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, आप जो है एग्रीकल्चर जो सब्सिडी होती है, ठीक है, तो व्हाट इज एग्रीकल्चर सब्सिडी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। So agriculture subsidy is the financial assistance granted to the farmers by the central government or state government. So there are 2 types of agriculture subsidies. First is direct subsidy, which means that central government or state government is directly helping the farmers by providing them mainly cash or loan waivers. Second is indirect subsidy. In indirect subsidy, what government do, their aim is to cut down the cost of the product which are mainly used by the farmer, so that the farmer can purchase it at a lower cost than the market price. Mainly for the direct subsidy, currently central government is running PM Kisan Samman Nidhi Yojana. In this 6,000 rupees every year is transferred to the bank account of the farmers. In how many installment? So 3 installments, 2,000 each. Installment 2,000, very good. And what about the upstream and downstream in relation to the food processing industry? Sir, in relation to the food processing industry, upstream are the instruments, we can say, like land, finance, all the things which we need to set up before starting any industry, like land, capital, machines, electricity, power connection, all these things.
and downstream are the things like when we have prepared our product, like we are preparing a pickle from mango. So how we will sell it, like branding, labeling, packaging, and if we want to do advertisement, how we will do this. So this all comes under downstream. चैतन्य तो मतलब पूरी प्रिपरेशन करके आ रखा है, जीएस पेपर 3 पूरा इसके दिमाग में क्या है, इनकलकेट हो रखा है। चलो लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ही पूछने थे मेरे को। लास्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि आपने बीच में फार्मर की इनकम को डबलिंग करने के लिए बताया था, तो हाउ वी कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर? Okay. Sir, currently also we can see that according to the Shanta Kumar committee report, only 6% of the farmers are able to get MSP. If government work on this stage that more farmers are getting MSP, so some of their income will increase by this only. And by doubling the income of farmers, government should teach them that they should leave the monoculture. They should not only depend on wheat, sugarcane or rice, because apart from these there are many other things like floriculture or horticulture. By practicing these, they can also means they can increase their income. वेरी गुड। तो आपका जो है राउंड समाप्त होता है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, ये मतलब कौन सिखा रहा है आपको इतना अच्छा? कितने दिन हो गए इन एकेडमी में ज्वाइन किए हुए आपको? सर मैं स्टार्टिंग में किया था, पर बीच में 1 महीना जुलाई में नहीं किया था सर। अच्छा, चलो काफी अच्छे कॉन्सेप्ट बन गए। मतलब आप तो टक्कर दे रहे हो जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन लोगों को भी और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को भी। नेक्स्ट टू इरम के पास हम चलते हैं। इरम बेटा कैसे हो? गुड इवनिंग सर। अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपने 12th करा था और अभी आप ग्रेजुएशन के किस वर्ष में हैं और किस स्ट्रीम से कर रहे हैं? जी, सो माय नेम इज इरम खानम and I complete my schooling for excellence public school Tikamgarh. I am recently live in Tikamgarh. I complete my graduation. I am first year student of PG college. ओके। जी सर। हमारे जो बहुत सारे जो श्रोतागण होंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस में एक बाय डिफॉल्ट चलता है हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना, उसको मैं क्लास में बहुत बार क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ कि हिंदी माध्यम वाले एस्पायरेंट ज्यादा है। चैतन्य तो पूरी इंग्लिश को बोल दिया, तो आगे चल के थोड़ा ना बाइलिंगुअल जैसा रखते हैं कि आप हिंदी में भी बोलो, जिससे कि और लोगों को ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना, क्लियर? तो अभी हिंदी में ज्यादा बोलो, तभी ज्यादा जो है क्या है लोगों को समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हो, ठीक है इरम? हिंदी में कंफर्टेबल हो? हाँ जी सर। चलो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। इकोसिस्टम जानती हो? इकोसिस्टम क्या होता है बताओ। An ecosystem is defined as a structural or functional unit of biosphere consisting of community of living and the physical environment, both interaction, exchanging material between them. ओके जितेंद्र सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, ओके। हाँ तो सर आप जो है इरम से आप भी क्वेश्चन पूछ दिए, चैतन्य से तो मैंने ही सारे क्वेश्चन पूछ दिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने इकोसिस्टम का पूछ लिया है इनसे। अब आप भी सर 1-2 क्वेश्चन पूछिए इरम से। ओके, हाय इरम। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माय क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ pyramids and its function. There are 3 types of pyramids. Pyramids of numbers, pyramids of ecotone, pyramids of energy, Yes. or pyramids of ecotone. इकोटोन ये How किसने it पढ़ा works? दिया सर? आपको पहली बार सुन रहा हूँ। सब pyramids of number, pyramids of energy, एंड pyramids of बायोमास। biomass. चलो सर कैरी ऑन करिए आप सर। Yes. Please explain pyramids in basis of population. इरम बेटा पॉपुलेशन का पिरामिड समझाइए, जी सर। पिरामिड ऑफ नंबर को समझाइए। जी सर। पिरामिड ऑफ नंबर में हम ये 2 टाइप्स होते हैं, अपवर्ड और स्ट्रेट। इनको हम सिर्फ इनकी जो चेन होती है उसी के
तरह ही डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी चेन अब बढ़ जाएगी या स्ट्रेट जाएगी। ये डिपेंड करते हैं अपने ऑर्गेनिज्म पे। कुछ Okay. एग्जाम्पल बता सकते हो? एग्जाम्पल? जी सर, अगर हम ग्रास लैंड की बात करें तो ग्रास लैंड की जो फूड चेन होती है तो वो जो भी पिरामिड्स हैं वो हमेशा ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होते हैं। फिर सर इसमें ऑटोट्रॉप से स्टार्ट होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर से, जो सनलाइट की हेल्प में अपना खाना बनाते हैं। तो जिसकी एनर्जी जितनी होगी उस हिसाब से हम अपने पिरामिड्स ऑफ बार चूज करेंगे। ओके, जी गुड। सर आप ही पूछिए इरम से क्वेश्चन। Yes, sir. Iram, please explain phenomena of Indian monsoon. ये बढ़िया क्वेश्चन सर- करा है सर। इंडियन मानसून बताओ बेटा। इंडियन Indian monsoon, please explain. 3 types of monsoon: summer, winter, spring और rainy season, rainy month। मानसून होता क्या है वो एक्सप्लेन करो ना। ये Indian तो हर कोई monsoon। बता देगा। इंडियन मानसून बताओ कैसे क्रिया होती है इसकी। आजकल तो मानसून चल भी रहा है। जी सर। North west, हाँ बताओ, प्रक्रिया बताओ। सर, चैतन्य इसमें चैतन्य खुश हो रहा है। चैतन्य खुश हो रहा है कि मैं जीत रहा हूँ, ठीक है। इरम के नेगेटिव हो रहे हैं। कामनी की जो है डर के मारे शांति बैठी हुई है। बताओ बेटा मानसून क्या होता है? जी सर, मानसून हमारे जो वेदर है उस पर डिपेंड करते हैं कि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसी हिसाब से हमारे मानसून आते हैं। जैसे विंटर हुआ, समर हुआ, ये भी, और रेनी सीजन और स्प्रिंग। मानसून के कौन कौन से कारण होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि मानसून आएगा? तो ऐसा कौन सा जो है फिजिकल या क्लाइमेटिक कुछ कारण होता है? तो फिजिकली इसमें कारण होते हैं, जैसे जैसे सर सर अच्छा आप इसमें मुझे थोड़ा- बताइए, जी इंडियन मानसून में आपने जब पढ़ा होगा तो फेरल का नियम एंड कोरियोलिसिस फोर्सेस के बारे में आपने स्टडी किया होगा। तो आप मुझे दोनों एक्सप्लेन करके बताएंगे कि व्हाट इज कोरियोलिसिस फोर्सेस एंड लॉस ऑफ फेरल? जी सर, बता दूंगी, लेकिन सर अभी थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, चलो, जितना कोई बने बात उतना ही असेंबल करके बताइए। जी एक बार देखिए क्वेश्चन बहुत बता सारी दीजिए। चीजें ऐसी रहती हैं, 1 सेकेंड, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो एग्जाम के समय जरूरी नहीं कि आपको 100 to 100% सारी चीजें बने, आप ये मान के चलिए, ठीक है। जी जब आप लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो पढ़ा तो आपने बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन राइट टाइम में आपको हो सकता है मेमोराइज हो ना पाए हो, रिकॉल हो पाए ना हो। तो आपको ये देखना है कि जितना भी आपके पास नॉलेज है उस समय, एट ए प्रेजेंट टाइम, जब आप एग्जाम हॉल में हैं, उस समय जितना भी आपके पास नॉलेज है, उस कम से कम नॉलेज को आप किस बेहतर अप्रोच के साथ में आप एक्सप्लेन कर पाओगे, ताकि सामने वाले को एहसास हो कि आप जानते तो बहुत कुछ हो, लेकिन आप इतना में बता के काम चल जाएगा। मतलब सामने वाले को एहसास नहीं होना चाहिए कि आप लोग नहीं जानते हो, राइट। इस तरीके से आपने जो भी पढ़ा होगा उसे इतना एक्सप्लेन तो करिए कि ताकि हम समझ सकें कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। फेरल का एक्सप्लेन करिए। फेरल का लॉ पूछ रहे हैं सर, फेरल या कोरियोलिस फोर्स? चलो इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, ठीक है। चैतन्य या कामिनी में से कौन हाथ खड़ा करके बताएगा मेरे को कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कामिनी, चैतन्य, बताओ कौन बताएगा? किसी को नहीं पता कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? चैतन्य ऑन कर रहा है। क्या होता है चैतन्य, बताओ जरा। सर नहीं पढ़ा हुई है। नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। कामनी आपके पास आवाज जा रही है हमारी? सर बात हो रही है, बट एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वह क्या होता है सर, पूछ रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा।
चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ ये पता चल रहा है आप लोगों को कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है, उसमें सीधा हाथ में हवा, उल्टा हाथ में कुछ सिखाया है आपको? राइट हैंड डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, कुछ याद आया किसी को? जल्दी बताओ, किसी को याद नहीं आया? चलो सर क्वेश्चन पास कर दो, तीनों प्रेशर में है बच्चे। सर ओके ओके। चलो कोई बात नहीं। तो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछें या सब्जेक्ट चेंज करें? अभी तो इरम को ज्योग्राफी से ही पूछो, ये इसकी ज्योग्राफी मुझे कमजोर लग रही है। ठीक है। इरम, आप मुझे टेम्परेट साइक्लोन एंड इट्स फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं? टेम्परेट साइक्लोन आपने शायद क्लाइमेटोलॉजी वाला पोर्शन नहीं पढ़ा क्या? तो पढ़ा है। पढ़ा? हाँ, तो फिर बताइए। अच्छा, भारत में आते हैं टेम्परेट साइक्लोन की नहीं आते हैं, इतना बता दो मुझे। भारत में टेम्परेट साइक्लोन आते हैं? सर इनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। शाबाश। इसका टर्म एक ट्रॉपिकल सिग्निफिकेंस से आया है। टाइप ऑफ साइक्लोन जनरली अकर्स आउटसाइड द tropics with a latitude range between 30 degree and 50 degree. शाबाश। This article is about temperate cyclone. वेरी गुड। अब जो है कामनी की बारी। कामनी डरी हुई बैठी हुई है। कामनी बेटा ऑन करो। कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, कुछ सर पूछेंगे, ठीक है? पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे को ये बताओ, ठीक है, आपसे मैं पूछता हूँ एथिक्स के क्वेश्चन, ठीक है? मुझे ये बताओ, ये जो एथिक्स और जो मॉरलिटी होती है, ठीक है, इसमें मुझे अंतर बता सकती हो? हाँ बताओ। जो एथिक्स होता है, जो एथिक्स को हम किसी दूसरे से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मॉरलिटी जो है जो हमारे अंदर सकती है। एथिक्स हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब से ले सकते हैं। मॉरलिटी जो हमारे अंदर से आती है, जैसे किसी को देख के या किसी के लिए जो हमारे मन में भावना आती है, किसी को हम देख के जो अपने मन में बच्चे ऐसा फील करते हैं सर, उसको हम मॉरलिटी बोलते हैं। और एथिक्स सर वो होता है जैसे किसी के लिए हम हमेशा अच्छे ही बने रहें। मॉरलिटी 100% भी नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव भी नहीं होती है, सब्जेक्टिव भी नहीं होती है। और सर जो एथिक्स है वो भी पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता और सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। शाबाश। अरे मुझे ये बताओ कि जो हमारा इनर कॉन्शियस होता है, तो इनर कॉन्शियस से क्या बनता है? एथिक्स बनता है कि मॉरलिटी बनती है? अंतरात्मा। सर मॉरलिटी बनती है। शाबाश, वेरी गुड। सर आप भी एक एथिक्स का क्वेश्चन पूछो, खतरनाक वाला है इससे। ओके सर। देखिए, दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, ठीक है ना? तो मुझे आप इन दोनों में डिफरेंस बताना, ठीक है ना? तो डिफरेंस इन बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड्स। एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, व्हाट डिफरेंस? सर जो हमारी अभिरुचि होती है वो हमारे अंदर से पैदा होती है। और सर जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हमें सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला हमारे साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, उस हिसाब से हमारा एटीट्यूड उसके लिए होता है। और जो सर हमारी अभिरुचि होती है वो हमारे खुद के अंदर से पैदा होती है। तो फिर एप्टीट्यूड क्या होता है? ये तो दोनों एटीट्यूड बताया आपने, अभिरुचि। अभिवृत्ति और अभिरुचि। सर पूछ रहे हैं एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। आप लोग सी सेट देखते हैं ना, यूपीएससी में सी सेट होता है, राइट? तो क्या होता है उसका? एप्टीट्यूड टेस्ट है ना वो, इंटरनेट कनेक्शन एप्टीट्यूड टेस्ट है ना? तो एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परीक्षा टेस्ट होता है, क्वालिफाई होता है। ठीक है, इसी टाइप की आपको मैं दो वर्ड्स और पूछता हूँ, ठीक है? चेतन से पूछें क्या? चेतन ने एथिक्स पढ़ी है? चेतन ऑन करो। सर यस सर, पढ़ी तो, लेकिन डिवाइस नहीं कर सर, पढ़ तो रखी है। यस सर। अरे कोई नहीं, शेयर पूछो सर, पूछो, पता तो चले पढ़ के आ रहे हैं एकेडमी पे। ठीक है ठीक है।
आप मुझे बताइए, देखिए ऐसे कीवर्ड्स हो तो आपको देखेंगे तो उन्हें एक्सप्लेन करने में काफी दिक्कत होती है, राइट। तो मैं आपको वही शब्द पूछता हूँ ताकि आपका एक्सप्लेनेशन पावर क्या है, कि आप चीजों को दोनों सिमिलर लगता है, लेकिन आप जब उसे एक्सप्लेन करेंगे तो हमें उसका डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि आपके अंदर वो एक क्रिस्टल क्लियरिटी है इस चीज को लेकर। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, सुनने में, समझने में, फील में वो आपको लगभग एक जैसा लगता है। आप लोगों ने सिंपैथी सुना होगा और एम्पैथी सुना होगा, राइट। तो ये सिंपैथी एम्पैथी हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि ठीक है, मैं आपके प्रति सिंपैथी रखता हूँ, मैं आपके प्रति एम्पैथी रखता हूँ। तो दोनों वर्ड एक ही टाइम में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो व्यक्ति यूज करता है जिसे ज्यादा समझ नहीं होती है। लेकिन चूंकि आप तैयारी कर रहे हो और आपको तो मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, तो मुझे आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, इन बिटवीन डिफरेंस सिंपैथी एंड एम्पैथी, बता पाएंगे? कोई भी एग्जांपल देकर आप देखिए, जरूरी नहीं कि आपको पुस्तक की परिभाषा ही मैं आपसे पूछता, आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए बस हो गया। आपको इस तरीके से वर्डिंग का इस्तेमाल करो ताकि हम लोग समझ जाएं। जरूरी नहीं कि आपने पुस्तक में कोई डेफिनेशन पढ़ी होगी, वो आपको मेमोराइज नहीं हो पा रही, रिकॉल नहीं हो पा रही, वो अलग बात है। आप एक्सप्लेन करिए कि एम्पैथी और सिंपैथी में, समानुभूति और सहानुभूति में क्या डिफरेंस है। कोई भी बता सकता है, ओपन क्वेश्चन है। इरम भी बता सकती है, कामिनी भी बता सकती है। एम्पैथी, सिंपैथी। सर सिंपैथी मतलब जब हम जैसे किसी के साथ कोई डिमोटिवेट होता है तो हम उसको थोड़ी सहानुभूति देते हैं कि हौसला रखो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। सर तो इसे अलग मेरे हिसाब से सिंपैथी करते हैं। और एम्पैथी कामिनी बताइए। सहानुभूति का होती है कि किसी आपदा के समय किसी व्यक्ति के कोई मेंटली रूप से परेशान होता है तो हम बोल देते हैं कि तुम, भगवान ने नया जीवन दिया है, इसको जियो और तुम्हारी हेल्थ खिला मत स्टेज, बस ये लोग सब करेंगे, इससे सर सहानुभूति बोलते हैं। और एम्पैथी मुझे लग रहा है हिंदी में थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है। इरम आपने पढ़ा है सिंपैथी एम्पैथी? सर एम्पैथी। हाँ, क्या होता है एम्पैथी? सर एम्पैथी तो वो होता है कि हम किसी के दुख को महसूस करते हैं। और सर सहानुभूति कि दूसरों के दुखों को प्रतीत करना अपने अंदर। पहुंच गई आसपास तो पहुंच गए। एम्पैथी, सिंपैथी और उसके भी आगे क्या होता है? करुणा, कंपैशन। ठीक, तो हमने चैतन्य से भी क्वेश्चन पूछे, हमने इरम से भी पूछे, कामिनी से भी पूछे। अब ऐसा करते हैं, 5 मिनट हम आपस में आप एक दूसरे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं भैया। चैतन्य, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो इरम से? पूछो आपस में, दो क्वेश्चन पूछो, कोई से भी, छोटे छोटे। What do you mean by ecotone? माइक ऑन करो, वो अनम्यूट करो बेटा इरम। हाँ जी, बताओ। फिर से बोल दीजिएगा। What do you mean by ecotone? इकोटोन जी बता। इकोटोन ये माइक ऊपर करो ना, वो नीचे क्यों कर ले रहे हो आप ना स्पीकर? जी नीचे से सर। नकल करके बता रहे हो क्या? कॉपी किताब खोल नहीं, तो फिर नो सर। तो बताओ सब इकोटोन हो क्या जाए। होता है फटाफट। जी हाँ, सर, इकोटोन वो होता है कि हम इकोटोन टेरेस्ट्रियल भी होता है और इक्वेटोरियल में, जो बीच में ही होता है। अगर हम कहीं देखें, हम टेरेस्ट्रियल में कोई एग्रीकल्चर फील्ड है तो वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े होंगे, पैरासाइट होंगे, अर्थवॉर्म होंगे, और उसके पास अगर कोई रिवर है तो वहाँ से क्रोकोडाइल भी आता होगा और क्रैब्स होंगे और जो भी होंगे वहाँ पे बर्ड्स भी आती होंगी। तो जो बीच में होता है, बिल्कुल बीच का, एक टेरेस्ट्रियल का भी और एक्वाटिक है उसका, एक्वाटिक का, तो वो होता है सर बीच का इकोटोन। शाबाश, ट्रांजिशन जोन बोला करो उसको। दूसरा क्वेश्चन चैतन्य, ट्रांजिशन जोन।
दूसरा What do you mean by carbon credit? कार्बन क्रेडिट। कार्बन, ये नहीं पढ़ा। चलो अब इरम की बारी। इरम फटाफट 2 क्वेश्चन पूछो कामनी से। जी सर। एथिक क्या है? एथिक्स क्या है? नीतिशास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसके अध्ययन को हम नीतिशास्त्र कहते हैं। शाबाश। दूसरा क्वेश्चन। एथिक्स सब्जेक्टिव होती है या ऑब्जेक्टिव? शाबाश। 100% सब्जेक्टिव हो सकती है ना 100% ऑब्जेक्टिव हो सकती है। एथिक्स हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि सामने वाले की सिचुएशन देख के एथिक्स के हिसाब से होता है। ठीक है कामनी बेटा फटाफट 2 क्वेश्चन पूछो चैतन्य से। अच्छा तुमने सांझ घाट तो नहीं कर रखी है? सब हमारे जवाब नहीं दे पा रहे हो, अपने एक दूसरे के जवाब दे पा रहे हो। चलो जल्दी पूछो कामनी चैतन्य से। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? Sorry. हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर। Sir, दूसरा सर क्वेश्चन। अभी एकदम याद नहीं आ रही सर। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछो। हरित क्रांति क्या होती है? हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन बताओ। सर ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली फार्मर्स को हेल्प करने के लिए लाई गई थी कि उनको मतलब कि इरिगेशन के लिए उनको फैसिलिटी मिले और क्रॉप्स के लिए उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराने के लिए मेनली सर। किस तरीके के सीड यूज करे गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन में? कुछ हाई यील्ड वैरायटी होता है? यस सर। तो फिर तो आपस में आपने क्वेश्चन भी पूछ लिए, मैंने भी क्वेश्चन पूछ लिए, सरन ने भी क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। बाकी तो पब्लिक जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगी कि इस जो है आपके एक तरीके से छोटे से कंपटीशन में, बहुत ही सुंदर कंपटीशन में कौन जीता, ठीक है। हम अध्यापक गण तो सर क्या ही बोले, हमारे लिए तो तीनों ही क्या है जीते हैं। और सबसे बड़ी बात सर जीत ये है कि ये बच्चे अभी से जागरूक हैं, ठीक है। इनके माता पिता भाई बहन वो इतने जागरूक हैं कि इनको अभी से क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जबकि अभी इन्होंने 12th पास करा है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी जीत ये है, ठीक है ना। और अभी आपके पास बीए फर्स्ट ईयर है या बीबीए फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तब तक तो आपको हम इतना नर्चर कर देंगे कि पूछो मत। लेकिन एक बात सर आपने नोटिस करी, जो इनको आता था वो सॉलिड आता था और या तो फिर नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इस कंपटीशन के जमाने में यही होना चाहिए कि हम अपने ग्रेजुएशन के टाइम से क्या करें, अपने सपनों के पीछे भागने लग जाएं। तो क्या होता है ना, हमारी जो है ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास 2 मिनट है और सम अप करिए सर। जी सर, मेरा मानना सर ऐसा है कि देखिए, अगर मान लीजिए 12th पास आउट होके अगर आप सिविल सर्विस के बारे में सोच रहे हैं तो ये पहला इनिशिएटिव आपके लिए बहुत अच्छा है मान लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद ये चीजें सोचते हैं। रही बात, आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, अभी बहुत सारे बनेंगे, अलग अलग हो सकता है वो। तो देखिए जब सिलेबस आप पढ़ेंगे ना, तो सिलेबस जब आप 3 साल बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको बनने लगेगा, वो इशू नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने सोचा। तो पहला कदम इसके लिए होता है कि आपने इसको सोचा, ठीक है। अगर आपने सोच लिए तो निश्चित तौर पर बनी जाओगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस को देखा है कि अगर मान लीजिए आप 12th पास आउट होके अगर माइंड में एक बार बना लिए आपने कि सिविल सर्विस में जाना है, तो आप यकीन मानना आपका बात करने का तरीका, आपका लिखने का तरीका, आपका हर एक एटीट्यूड आप देखेंगे तो आपको सीधा सिविल सर्वेंट की तरफ ले जाता है। और मेरा भी अपना ही मानना है कि आप लोग क्या करिए, एक सिविल सर्वेंट की तरह आप अपने आप को देखिए। अभी कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है, आपके बात करने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए, राइट। भले आप अभी बच्चे हैं, मैच्योरिटी आपको नहीं होगी, उतना हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को वैसा प्रेजेंट करिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, भी बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे स्टूडेंट लाइफ में, तो आप इस तरीके से हैंडल करिए कि आप ये मान के चलो कि आप सिविल सर्वेंट हैं। और सिविल सर्वेंट को आप जानते हैं कितनी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। लाइन ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। तो आपको ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आएंगे अपनी लाइफ में जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अभी से आप चूंकि कर रहे हो, सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और गॉड ब्लेस यू सभी लोगों को, और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। रही बात हमारी बात, जितना हम आपसे मेहनत कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे, हम अपना 100% आपको देंगे, ठीक है।
आप भी अगर 100% देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर नाइस टॉक जी सर। एंड थैंक यू जी, वेरी मच ऑल एस्पायरेंट। आप आए यही काफी था। ठीक है, हार जीत तो जीवन में लगी रहती है, मिलके मेहनत करेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के हो। ठीक है ना, और ये वीडियो एक मसाल बनेगा लोगों के लिए, मिसाल बनेगा कि आगे चल के कि वो भी अभी से अपग्रेड होके सिविल सर्विस की तैयारी करें। तो जय हिंद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।